कर दिया। Again, good morning everyone. Polynomial. Now, Arnav, tell me what you understand by the term variable. Yesterday we discussed. तो UV के लिए हो जाएगा। और UV ने तो स्पीकर भी म्यूट कर रखा है, ऐसा क्यों करता है वो बार-बार? ओके, तो yesterday हमने बताया था वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होता है? It is a term or a quantity. Variable is a term or quantity which can take any real value. Say I write down x. The x as a x, y, z we use as a variable. Yesterday I told to you. And these variables can take any quantity, either 1, 3,000 like that. तो ये आपका क्या कहलाता है? वेरिएबल है। And variables we are generally denoted with x, y and z. Then second term we have discussed constant. क्या डिस्कस किया था हमने? Constant. तो constant की जो टर्म होती है वो क्या है? It is a term, again it is a quantity. Variable का x, y, z as a variable we can choose any value. और constant में खाली numbers होंगे जो कि क्या होता है? उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में थ्रू आउट एक ही नंबर रहता है, फिर वो चेंज नहीं हो सकता, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। एंड कांस्टेंट बी डिनोटेड बाय टर्म्स a, b एंड c। कांस्टेंट किससे लिखते हैं हम जनरली? a, b, c। एंड वेरिएबल किससे लिख रहे हैं? x, y, z। फिर अभी पॉलिनोमियल आएगा, उसको हम लिखेंगे p, q, r। इस तरीके से लिखते हैं। देन हमने डिस्कस किया था एक टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। The algebraic expression is actually the combination of constant and variables. The combinations of constant and variables with a algebraic sign, plus, minus, into, division, like that we use. That is called algebraic expression. Now tell me any example of algebraic expression. आइए फटाफट बताते जाओ, रिवीजन कर लें। अनमोल आप बताओ। 2x plus 2x to the power 5 plus 5x 2x plus 3 example, x is to power 5 minus plus 3 minus d minus 3, मतलब any combination of variable and constant term with mathematical operators, then it is called a algebraic expression. Now I write down this algebraic expression, another 2x cube plus 5x square minus 3x plus 4. So this is for UV, this is specially for you. हम आप इसको रिवाइज कर रहे हैं। So 2x cube plus 5x square minus 3x plus 4, ये एक algebraic expression है। और किसी भी algebraic expression में दो चीज मैंने कल आपको बताई थी, इसमें होती है terms। क्या होती है? terms। तो ये 2x cube 5x square minus 3x and 4 ये terms हैं। तो how many terms in this algebraic expression? आंसर बोलो 4। कितनी है? 4 है। अब अगर मैं पूछूं कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, तो हमारा आंसर होगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 5। यू बी गुड। अब मुझे बताओ, आप तीनों से पूछ रहा हूं, सबसे पूछ रहा हूं, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो हो सकता है आपको आता हो। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। सर 4 यस यू बी 4। यस गुड, वेरी गुड। देखिए मैंने कल इक्वेशन लिखी थी ax and like that, तो 3 पावर 2 पावर 1 पावर यहाँ कुछ भी नहीं है, x की पावर 0 and any variable or a number whose power is 0 always equal to 1. Remember this relation. Okay? our next term था फिर polynomial। पॉलिनोमियल क्या होगा? अब उसमें इसमें क्या फर्क है? तो पॉलिनोमियल इज अगेन ए काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होगा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, बट इट कंटेन्स, इट्स पावर्स कंटेन्स ओनली होल नंबर। मेन पॉइंट क्या होता है इसमें? सिर्फ होल नंबर होगा, मतलब and never be negative or in fraction. So finally we can say any algebraic expression has only whole number
as the exponent of the variable. Exponent of the variable is always whole number and is called the polynomial. Okay? फिर हमने बताया था इसके एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल हो गया पॉलिनोमियल का, राइट? तो आप इसके बाद में नोट करके लिख लीजिए, मैंने कल भी बताया था, नोट्स भी आपको भेजे हैं कि एनी टर्म्स विथ फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, एनी टर्म विथ फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट लाइक दैट x raised to power 1 by 3 plus 2x square plus 1, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बताओ, तीनों चारों बोलो। नो। नो, व्हाई? बिकॉज रीजन, क्योंकि here x raised to power 1 by 3 है, 1 by 3 is a fraction। तो हमारा पॉइंट बन गया एनी टर्म विथ फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट पावर्स की बात होगी, एक्सपोनेंट, देन इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। सेकंड, एनी टर्म विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट, फॉर एग्जांपल x plus 1 upon x, it is a polynomial? No, it is not a polynomial because UV, especially for UV, explain it again, yesterday we have already learned it। तो x plus x की पावर -1, यहाँ पे -1 पावर आ गई, इट इज ए नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो एनी टर्म विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। नाउ हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ए पॉलिनोमियल? तो मैंने बताया था कि एट द इनिशियल स्टेज वेरिएबल्स x y z, फिर इसके बाद थी कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म वी डिनोट a b and c, एंड पॉलिनोमियल्स वी डिनोट बाय p q r s। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं। तो p q r s, इट्स मींस p x is represent a polynomial of x। you can write qx also, you can write rx also। तो पॉलिनोमियल के लिए p q r s t u v से चलेंगे, वेरिएबल x y z जनरली तीन ही है, फिर अगर एक्स्ट्रा वी कैन चूज u and another term t or n, and constant terms starting from a b c or any numerical number, right? So tell me now if this is a polynomial or not a polynomial। I write down as u is equal to u cube plus 2u square plus 1। uv बताइए, this is the answer asked by the uv। बेटा बोर्ड नहीं दिख रहा? I repeat it again, s is a polynomial, u is u cube plus 2u square plus 1। it is a polynomial or not? It is a polynomial, it is given by s, and what is the variable in this case? U is I choose as a variable. This is a new term today I explain to you. Okay? Now the terms and coefficient of polynomial. How many terms in this polynomial? 3. Yes? 3 terms. 3 terms. And what is the coefficient of u square? Sir, 2. 2. u square beta 2 is 2, right? Now then next heading, classification of polynomials. What is next we are going to discuss? Classifications of a polynomial on the basis of number of terms। मैंने yesterday हमने डिस्कस किया 2 टाइप के बेसिस हैं, किसके बेसिस पे पूछ रहा हूं मैं अब? we are talking about on the basis of number of terms। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कितने थे बताओ वरना? नहीं बोलो। नंबर मोनोमियल, हाँ, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, हाँ, नंबर वाइज चलिए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और देन पॉलिनोमियल। तो इफ ए पॉलिनोमियल कंटेन्स ओनली वन टर्म, मतलब सिर्फ क्या हो, u क्यूब हो या 2 स्क्वायर और 1, then it is called a polynomial of one term and it is known as
monomial. क्या कहलाएगा ये? It is called monomial. Now next term is binomial. If a polynomial contains two terms, then it is called a binomial. Example, कुछ भी ले लें, 3x square plus 2. It is a binomial. And third term is trinomial. This is the example. Okay. Now degree of a polynomial in one variable. In your syllabus only one variable, two variable अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो degree of a polynomial क्या होती है? Tell me. Sir, the degrees of power. Sir, the power. The highest power of the variable in a polynomial is known as degree of the polynomial. In our case, it is a trinomial and our variable is u. Here highest power of u is 3. So is degree of polynomial is 3. Okay, good. एक मैं पूछता हूँ 76 प्लस 7t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9. Tell me how many terms? Number of terms? 5. 1, 2, 3, 4, 5. And degree of the polynomial is 6. And coefficient of t is 3. I hope it's now. It's a 3 plus. Okay, not clear. It's plus. It is a plus. Okay. Now ये तो हमने किया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स. नाउ नोट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्रीज. अब डिग्री के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होगा. तो अर्णव बताओ, इफ ए पॉलिनोमियल हैज ए डिग्री 1 ओनली, इट इज कॉल्ड यस 1 ओनली. 1 बेटा 1 लीनियर. तो पहला पॉलिनोमियल हो गया. हेडिंग कर सकते हैं आप, क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. तो पहला हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल. तो इसका आंसर होगा ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल एंड इट इज द जनरली फॉर्म. जैसे हम लिखते हैं px, तो px इज इक्वल टू, बताओ कोई एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल का. 2x और एनी अदर 2 टर्म्स का लीनियर पॉलिनोमियल. सर 2x plus 1 x plus 2 3x plus 1. You it is clear for you to you? 3x plus 1. Now next is second term is quadratic polynomial. now क्या definition quadratic polynomial? अनमोल polynomial without degree having. Yes अनमोल बताओ. Sir, polynomials having the way. बोलो कहाँ तक भाई. पॉलिनोमियल अभी बोला मैंने, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री नॉट वेरिएबल. डिग्री मीन 2. ए पॉलिनोमियल कैन हैव डिग्री 2 is known as quadratic polynomial. A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. ये कहाँ से मिला वर्ड? हमें स्क्वायर से मिला. एक स्क्वायर से एक क्वाड्रेंट हो जाता है, उस तरीके से बताया है. इसका एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हो गया. 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. तो इट इज ए quadratic polynomial. Right? Now next is you be yes or no. आपके लिए कर रहे हैं बेटा, एटलीस्ट रिप्लाई करिए. थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. बताओ सर, ए पॉलिनोमियल of degree of degree 3. called a cubic. Arnav, where is you are busy? Polynomial with the highest degree of 3. तो वो डिग्री का मतलब ही बेटा हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट डिग्री नहीं होती.
highest दो power, डिग्री highest हाईएस्ट power. पावर, या डिग्री वर्ड यूज करा तो डिग्री की डेफिनेशन ही है, ठीक है। तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, बोलो सारी तो मन में याद हो जाएगा, इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैं लिख रहा हूँ एग्जांपल, qx is equal to ax3 plus bx square plus cx plus 3. It is a example of cubic polynomial. So I repeat it again. A polynomial of degree 3 is called a cubical polynomial. Example is ax cube plus bx square plus cx plus 3. I hope समझ में आ गया सबको, यहाँ तक रिवाइज हो गया। Yes. अब हम चलते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल में ये हो गया यहाँ तक, फिर मैंने कल आपको बताया था एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो नेक्स्ट ले लो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो क्या डेफिनेशन बताई थी हम लोग? Constant polynomial. भूल गए? It has only a number, no variables. नो वेरिएबल्स, यस बिल्कुल सही बोला है। इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ ए, आई रिपीट इट अगेन, ए पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ ए ओनली सिंगल टर्म, पहले आई यूज द वर्ड सिंगल टर्म, ओनली सिंगल टर्म, लेकिन वो टर्म कैसी होनी चाहिए? एज नॉन जीरो कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, एक्स वाई जेड नहीं होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, नंबर लेकिन Polynomial always results in the same value. क्या बेटा, रिपीट इट। The constant polynomial always results in the same value. सेम वैल्यू, वही मैं आपको बता रहा हूँ, उसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वैल्यू चाहिए लेकिन कैसी होनी चाहिए? नॉन जीरो कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल 7, ओके। अब मेरे को बताओ सब लोग, √3 इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल और नॉट? √3, Yes. यस, बिकॉज इट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू और कैसी है? नॉन जीरो है। हमने ये नहीं कहा कि होल नंबर होना चाहिए यहाँ पे, बट अगर x is to power √3 है, then it is not a polynomial. In this case, this must be a whole number, right? तो ये हमारा हो गया क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब यही सुनो, हमने कहा नॉन जीरो होना चाहिए, यू भी आप बताओ। हमने, आपने बोला मैं सही कहा था, लेकिन कहा जीरो, नॉन जीरो वर्ड ऐड करना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं जीरो लिख देता हूँ तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? यू भी है। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए मैंने मना कर दिया और वेरिएबल इसमें है नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, बट इट इज रॉन्ग। तो ये क्या है फिर? नाउ इफ आई राइट डाउन ओनली जीरो, Zero polynomial. हाँ, it is called a zero polynomial. Yesterday we have discussed. So note down next term is zero polynomial. Definition लिख लीजिए, write down. A polynomial consisting of only a single term. Again only a single term. बट वो कैसी होनी चाहिए? नॉन जीरो नहीं, जीरो होनी चाहिए और वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो हम लिखेंगे ए पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ए सिंगल टर्म एज जीरो इज कॉल्ड ए जीरो पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड ए जीरो पॉलिनोमियल। is called a zero